When we talk about counterparty risk, your first role, if you can brief slightly in detail, if possible, with an example that what ideally somebody who's looking at counterparty risk would ideally do. To understand counterparty credit, you need to understand the business first, right? But again वही एक बार वो थोड़ा ग्लोबल और ब्रॉड बेस्ड पर्सपेक्टिव होता है. जैसे कैपिटल हम एक साल के टेनर के लिए करते हैं, इंटरनल कैपिटल कैलकुलेशन, कैपिटल कैलकुलेशन एक साल का टेनर होता है. लॉस कैलकुलेशन होता है वो 5 साल के लिए, जो हमारे IFRS 9 गाइडलाइंस होते हैं वो बोलते हैं 5 साल का. जैसे आपने PFE का रेफरेंस दिया, तो जितने मैंने बायलैटरल ट्रेड्स किए हैं उसमें आज ये स्टेटस है, करंट एक्सपोजर मेरा ये है, लेकिन ट्रेड्स तो 6 साल के हैं, 7 साल के हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कहाँ मुझे क्या क्या मैक्सिमम इम्पैक्ट आ सकता है. तो ये जो स्ट्रेस है वो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट एक्सपोजर पे लगे. बैंकिंग बुक तो मुझे पता है, मैंने 100 मिलियन का लोन दिया है. ओवरऑल जो पोर्टफोलियो, जब आप एक बैंक के टॉप लेवल पे देख रहे हो कि पूरे बैंक का पोर्टफोलियो, राइट, तो वो JP मॉर्गन और मॉर्गन स्टैनली का सेम नहीं है. इट इज़ डिफिकल्ट. बैंक्स don't really go after those people, even if you are a bachelor's. FRM किया, CFA किया और CQF किया. तो पहले तो FRM CFA आपने साथ में किया था, तो क्या थॉट प्रोसेस था वो करने के पहले? Hello friends, hi, this is Ganesh Nayak. I help finance professionals and students to excel in their career and become a better version of themselves. And I also help students who are preparing for competitive exams in finance to clear them. Now, as a part of that journey, we also talk to people from the industry to understand what are the different roles and opportunities that are there, and what are the different skill sets that you need to make a career in finance. And as a part of that discussion and journey, I'm with Aryan, and he's going to be talking about his entire journey till now in the world of finance and what he has learned. So, Aryan, thank you very much for taking out time and talking to us. Thank you. And this podcast is going to be a mix of Hindi and English. So, Aryan, from the start, I mean, if you can guide how your journey has been, okay, till now in the finance area. Hello. So I joined the banking industry back in 2021 after doing my MBA in finance. I started off with the counterparty credit risk analysis. Okay. It was more revolving around looking into large investment banking portfolios as to what you have in those portfolios. There are day-to-day trades, the amount of risk that you are incurring, how if the bank has that appetite to incur that risk, or something like if there is a new trade and it's going haywire, or it's not really behaving with the larger portfolio as expected. So more from a portfolio perspective and counterparty credit risk perspective. Okay. Then I moved to Barclays. Here I started off into the risk modeling side, more from model management and governance perspective. Okay. Where my job revolved around looking into the old models Okay. of credit risk stress testing. So IFRS 9, which is one of the major tools that is used in stress testing. So we used to have an older version of it. So when I came in, my job initially was to redevelop it as per the new Basel 4 norms, Basel 3.5, you can call it. And then from there on, I moved that. So IFRS 9 is more into banking book. I'll explain later on. Then from there, I moved to trading book stress testing, where again I had to revamp the old models and create new methodologies so that they align with regulators. So a lot of regulatory stuff. Okay. From where I started, that was more of a portfolio perspective. This is more of a bank wide global portfolio perspective as the total business of the bank. So when you talk about the model validation piece, generally in companies they have a separate model validation team, not specific to credit risk. So you're talking about the separate team, or so the structures in different organizations vary differently. Okay. So where I moved in, there the structure was that they kept an in-house model manager, so that they can look into what is there into the existing system, and then moving on to what the model managers want, create a bridge between them, between what the execution part and what's the feasibility. Because अगर आप ऊपर से जाओगे शुरू करोगे तो ऊपर वाले they will ask you anything. They don't know what is the situation at the ground level. They will only talk in numbers and formulas. But what's feasibility at the ground level is very different from what you have
at top of the head level, that you can think about painting into the sky, but when it comes to reality, you have to understand there are limitations here, there are limitations there, and you need to bridge those so that you get an efficient and effective framework, effective tool as well, which kind of accommodates all the requirements. When we talk about counterparty risk, your first role, if you can brief slightly in detail, if possible, with an example, that what ideally somebody who's looking at counterparty risk would ideally do. To understand counterparty credit, you need to understand the business first, right? When you look into a manufacturing firm, you have all the assets as fixed assets. Right. You'll have property, plants, equipments that you can call as an asset. Right. But when you move to banking, the assets are not property, plant, or something tangible that you can hold. What is the asset? It's, I have given you a $10 million loan. Right. That is my asset. Right. So now what if you run away? भाग गया मेरे पैसे लेकर के, बराबर, राइट? तो मेरा रिस्क यहाँ पे आता है. तो इस वजह से ये जो रिस्क फंक्शन है, दैट इज predominantly centered in banks. You won't see in FMCG that much. Right. तो that becomes the risk part. Now within risk आपके पास multiple bifurcations होते हैं. Then you have the market risk. So suppose I've given you a $10 million loan, right? Now tomorrow Indian rupees versus I took the money in Indian rupees. Yes. रुपीज में उठा करके डॉलर में लोन दे दिया. बराबर. अब कल डॉलर का एक्सचेंज रेट चेंज होने वाला है. तो कल पॉसिबली आपको जो मैंने 10 मिलियन दिया था उसकी वैल्यू 11 मिलियन हो गई सपोज. ओके. राइट. ओके. तो एक एक्स्ट्रा मिलियन आ गया हमारे पास जो मेरा लायबिलिटी हो जाएगा, क्योंकि आप जब मुझे पैसे दोगे आप तो 10 ही दोगे ना. बराबर. मेरा लायबिलिटी तो 11 बन गया. बराबर. दैट इज अ मार्केट रिस्क. तो उसको हेज करके चलते हो. तो वो एक मार्केट रिस्क का पोर्शन हो जाता है. दूसरा हो जाता है क्रेडिट रिस्क. क्रेडिट रिस्क जहां पर आता है वहां पे है कि अब आपने 10 लिए भाग गए, टाटा बाय बाय, मेरा फोन नहीं उठा रहे हो, व्हाट कैन आई डू. तो वो पूरे 10 मिलियन डूब गए, राइट. तो ये क्रेडिट रिस्क का पोर्शन आता है. तो इस पोर्शन में आप जब ट्रिकल डाउन करते हो तो आपके अलग अलग बाइफर्केशंस आते हैं. आप बहुत बार सुनोगे क्रेडिट रिस्क एंड काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क. तो दोनों अलग है तो सेम सबसेट के अंदर, बट इट्स वेरी डिफरेंट. क्रेडिट रिस्क इज यू डिफॉल्टिंग, बराबर, because I gave you a loan. बराबर. Counterparty credit is that you and I are trading. So जैसे हम मार्केट में निफ्टी के ऊपर ट्रेड करने जा रहे हैं. हाँ, बायलैटरल ट्रेड हो गया. बायलैटरल ट्रेड. तो बायलैटरल ट्रेड का एक ये होता है, निफ्टी का एक एक्सपायरी होता है. सेम वे बायलैटरल ट्रेड में एक एक्सपायरी होगा कि हम 5 साल का ट्रेड कर रहे हैं. अब 2 साल में आप बैंकरप्ट हो गए, राइट, और हमारे पास पोजीशन है. तो काउंटर पार्टी क्रेडिट क्या होता है ना, काउंटर पार्टी क्रेडिट एक जो आप जब पढ़ा CFA और FRM के कोर्सेज करो, OTC मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो बायलैटरली, तो वो बहुत छोटा सा कंसेप्ट होता है वार और PFE का. हाँ, तो पोटेंशियल फ्यूचर एक्सपोजर. तो वार लेफ्ट टेल टेस्ट है जो आपको बताता है दैट व्हाट यू आर गोइंग टू लूज, राइट. PFE is a right tail test which gives you an understanding of how much you are going to gain, which you may not be able to recover, right, which will become your counterparty credit risk, right. So within credit you have a counterparty credit risk which looks into day-to-day market, which was initially my first job. Day-to-day looking into portfolios, how much risk that I have in a particular portfolio, what's the position in the particular portfolio, if I need a hedge, if the old hedge is expiring, how efficiently I can hedge again without incurring cost. Then comes the capital part, where of course you have to, which is kind of aligned with liquidity risk, because आप FRM में पढ़ने जाओगे तो जो 4 मेजर आते हैं, liquidity, market, credit and operational. So हर एक बैंक के पास अब एक पर्टिकुलर कैपिटल बफर होना जरूरी है, so that in case of certain risk events you at least are able to pay off your liabilities in the consideration. Like FRM में you will have the पुराने LTCM के case studies. Silicon Valley is also primarily liquidity risk ही सब लोग फेस करते हैं. Yes, तो liquidity risk, तो उसको कैप्चर करने के लिए आपके पास एक पर्टिकुलर कैपिटल बफर होना चाहिए. तो वो कैपिटल कैलकुलेशन का एक सेपरेट टीम होता है क्रेडिट फॉर द क्रेडिट पर्सपेक्टिव ओनली. हाँ, राइट. लेकिन आप जब टीम देखते हो, सो इट इज द काउंटर पार्टी रिस्क का टीम विद इन द क्रेडिट रिस्क टीम. यस, ये हम बात करें क्रेडिट रिस्क मिडिल ऑफिस. यस, करेक्ट, बराबर. उसमें काउंटर पार्टी फिर क्या होता है, कंट्री रिस्क भी मैंने सुना हुआ है. कंट्री रिस्क अगेन अनदर विंग, जहां पे आप एक पर्टिकुलर रिस्क को एसोसिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू उस कंट्री में, जिस कंट्री में आप बिजनेस कर रहे हो. Okay. जितने मेरे ट्रेड जोन है, जितने मेरे काउंटर पार्टीज वहां पे जो अब आप
जा करके अर्जेंटीना में बैठे हुए हो, जिम्बाब्वे में बैठे हुए हो, ओके। आपके पूरे एसेट्स जिम्बाब्वे में हैं, हमने जो ट्रेड बुक किया है वो ट्रेड हमारे सपोज उस कंपनी के जिम्बाब्वे ऑफिस में बैठे हुए हैं, ओके। तो जिम्बाब्वे की इकोनॉमी अगर बर्बाद होती है तो फिर हमारा उस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज वहाँ पे एक्सचेंज रेट्स होंगे, डिवैल्यूएशंस होंगे, इन्फ्लेशन एग्जिस्ट करेगा, तो उससे भी हमें लॉसेस होंगे। तो कंट्री रिस्क उसको देखता है। अभी एक और बड़ा साइड आ रहा है क्लाइमेट रिस्क का, विच इज मोर ऑफ अ लॉन्ग टर्म होराइजन यू वुड से, बट अगेन वही है, पर वो थोड़ा ग्लोबल और ब्रॉड बेस्ड पर्सपेक्टिव होता है। जैसे कैपिटल हम 1 साल के टेनर के लिए करते हैं, इंटरनल कैपिटल कैलकुलेशन 1 साल का टेनर होता है। जो लॉस कैलकुलेशन होता है वो 5 साल के लिए, जो हमारे IFRS 9 गाइडलाइंस होते हैं वो बोलते हैं 5 साल का करो, 5 साल के प्रोजेक्शंस करो। बट जब क्लाइमेट पे आते हो तो वो होता है कि 20-30 ईयर्स, तो वो 1 साल जो है वो टेनर्स 5 ही रहेंगे, बट एक टेनर का जो पीरियड होगा वो 1 साल की जगह पे 5-5 साल के बकेट्स होंगे। तो सपोज 25 साल के लिए, 30 साल के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस हर तरीके से जो पूरा क्रेडिट का सिस्टम है वो फ्लो करता है। सो ये सारा का सारा प्रोसेसेस है, और इन सब में सारे लोग बैठे हुए हैं एग्जीक्यूट करने के लिए। बट ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे जो वैल्यूएशंस या फिर कैलकुलेशंस हो रहे वो हम अपने BA2+ खोल के कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास टूल्स होने चाहिए। तो वो टूल्स बनाने के लिए एक क्वांट की टीम बैठती है, ओके, जो इंटरनली क्रेडिट के अंदर ही एक क्वांट की टीम होती है, जो कि वैल्यूएशंस, वही क्वांट की टीम आपके फ्रंट एंड में जो ट्रेड कर रहे हैं, आपके क्रेडिट रिस्क मैनेजर्स ट्रेड अप्रूव कर रहे हैं या फिर ट्रेडर्स ट्रेड अप्रूव कर रहे हैं, तो वो वहां से ट्रिकल डाउन करते हुए कि ट्रेडर्स के लिए एक टूल है जहाँ पे आपका इंस्टेंट वैल्यूएशंस आ रहा है कि आपका एक फिक्स्ड इनकम स्वैप है, तो आपने बस पैरामीटर्स डाला और वैल्यूएशंस आ गए। फिर आप नीचे आ रहे हो कि आपका काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क कितना है, तो PFE का जो सिमुलेशन करना है, EEP, वो सारा का सारा हमारा जो कैलकुलेशंस है वो एक टूल बनाने के लिए है। तो वो टूल से हमारे एक इसमें पॉइंट, जैसे आपने PFE का रेफरेंस दिया, तो जितने मैंने बायलैटरल ट्रेड्स किए हैं उसमें आज ये स्टेटस है, करंट एक्सपोजर मेरा ये है, लेकिन ट्रेड्स तो 6 साल के हैं, 7 साल के हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कहाँ मुझे क्या क्या मैक्सिमम इम्पैक्ट आ सकता है। हाँ, तो और वो मॉडलिंग करके आप कैपिटल निकाल रहे हो। करेक्ट। तो करंट एक्सपोजर तो वो हो गया जो कि हम आज के दिन का पर्टिकुलर, बट ओवरऑल जो हमारा पोर्टफोलियो का एक्सपोजर है वो हमारा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होता है कि हमारा सबसे ज्यादा पीक PFE कहाँ पर है। उस टेनर बकेट पे तो हम हमेशा पीक PFE को ही कंसिडर करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव। समझा कि अब आप PFE आप हर रोज चेक कर रहे हैं कि आपका आज का PFE कहाँ है, तो आपका एक करंट एक्सपोजर तो डेली मूव हो रहा है, आपका पीक PFE भी मूव होगा, आपके बकेट्स, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है तो आपका अपडेट हो रहा है, तो वो अपडेट होता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट जनरली तो PD के लिए भी अलग मॉडल्स रन होते हैं, फिर LGD के लिए अलग मॉडल्स रन होता है, वो भी आपकी क्वांट टीम आपको बना के देती है। करेक्ट। तो ये PD और LGD के इंटरनल मॉडल्स भी होते हैं, कुछ रेगुलेटरी वाले मॉडल्स भी होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड IRB, राइट, बाज़ेल वाले वो रिकमेंडेड हैं। तो वो सारा का सारा बैंकिंग बुक और ट्रेडिंग बुक के लिए अलग अलग डिजाइन भी हुआ जाता है और उस हिसाब से आपका इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। और विद इन क्रेडिट रिस्क आल्सो यू हैव स्ट्रेस टेस्टिंग टीम। करेक्ट। वो क्या करती है? तो क्रेडिट स्ट्रेस टेस्टिंग टीम बेसिकली उनका काम ये होता है कि आपका जो ट्रेडिंग बुक है उस पे आप चेक कर रहे हो कि एक पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम में आपका रिस्क कितना मूव हो सकता है। आपने एक पर्टिकुलर सिनेरियो दिया कि इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग डाउन by 50%, US economy going down by 50%, Europe going down by 25%, Nifty going down by 20%, आपका S&P 500 moving down by 10%। तो आपके तो ट्रेड्स हैं इन पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन पॉइंट्स पे, ये सारे क्लियरिंग हाउसेस, आपके क्लियरिंग हाउसेस होंगे, आपके निफ्टी जैसे स्टॉक एक्सचेंज होंगे, वहां आपने जो भी ट्रेड हो किया होगा वो क्लियर तो इन्हीं पोजीशन पे होगा ना, बराबर। तो अगर आपका बेंचमार्क मूव हो रहा है तो उससे आपके पोर्टफोलियो पे क्या रेफरेंस जो है आपका वो मूव हो रहा है। यस, करेक्ट। उसके बाद फिर आपके इंटरेस्ट रेट्स जो आपके पूरे के पूरे इंटरेस्ट रेट कर्व्स को डिटरमाइन करते हैं, जो सबसे बड़ा फैक्टर है। करेक्ट। करेंसी एक्सचेंज, आपका करेंसी एक्सचेंज के वैल्यूएशंस डीवैल्यू हो रहे हैं, तो इन सब में आपका ओवरऑल क्रेडिट रिस्क पे क्या इम्पैक्ट आएगा? इससे तो ये जो स्ट्रेस है वो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट एक्सपोजर पे लगेगा। ओके, समझा। तो पहले कल मेरा एक्सपोजर से 100 बिलियन का था क्रेडिट एक्सपोजर, आज मैंने अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रेस किया कि अगले 1 साल के होराइजन में ऐसे ऐसे सिनेरियोज हैं सच एंड सच, उससे मेरा क्रेडिट एक्सपोजर किस जगह पे जाएगा। तो से मेरा 100 बिलियन का एक्सपोजर 120 बिलियन हो गया, राइट।
तो 120 बिलियन में जो 20 बिलियन एक्स्ट्रा एक्सपोजर आ रहा है, तो नाउ रेगुलेटर्स विल कम इन एंड बोलेंगे कि भाई तुम जो ये 20 बिलियन एक्स्ट्रा आ रहा है उसको कवर करने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं। तो फिर Okay. हमारा वो टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल आ जाता है, वहां पे हम चेक करते हैं दैट ये Okay. जो 20 बिलियन है वो हमारे टीयर 1 कैपिटल से कवर हो रहा है समझे। या टीयर 2 समझे। कैपिटल का जरूरत पड़ रहा है, एंड सो फोर्थ। तो ये स्ट्रेस टेस्टिंग के रिजल्ट आपके सीकार रिपोर्टिंग में भी जा रहे हैं। सी का तो इनपुट आ जाता है ना, हाँ राइट, उन्होंने जो सिनेरियोज बना के सिनेरियो दिया है सी कि का बेस सिनेरियोज यस, होंगे वो उनके, उनके सिनेरियोज बट होते हैं। इंटरनली आप अपने खुद के भी सिनेरियोज बनाओगे करेक्ट, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द पोर्टफोलियो आपको करेक्ट। लगा। सो एक होता है रेगुलेटरी स्ट्रेस टेस्टिंग, जो कि रेगुलेटर्स ने हमें बोल दिया, तो Right. वो अभी हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है इकोनॉमिक कैपिटल और Reg capital, हाँ। रेगुलेटरी कैपिटल। तो इकोनॉमिक जो सीकार सिनेरियोज है वो हमने में रेगुलेटर्स ने दिया, वो रेगुलेटर्स ने हमें जब दिया तो फिर उससे एक रेगुलेटरी कैपिटल आया, एक इकोनॉमिक कैपिटल की मैनेजमेंट खुद एक एस्टिमेट कर रहा है कि हमें कितना कैपिटल रखना चाहिए। बराबर। तो उसके लिए हम इंटरनली अपने सिनेरियोज बनाएंगे, कुछ कुछ हम लेवरेज भी करते हैं सीकार के सिनेरियोज से, रेगुलेटरी सिनेरियोज से, मतलब रेफरेंसेस ले लिया, रेफरेंस ले लिया, थोड़ा और बढ़ा दिया उसको, थोड़ा बढ़ा दिया, कम कर हाँ। दिया अकॉर्डिंगली हमारा, बिकॉज ओवरऑल जो पोर्टफोलियो जब आप एक बैंक के टॉप लेवल पे देख रहे हो कि पूरे बैंक का पोर्टफोलियो, राइट, तो वो जेपी मॉर्गन और मॉर्गन स्टैनली का सेम नहीं होगा, करेक्ट, एक्सिस बैंक एसबीआई का भी सेम नहीं होगा। तो वहां पे इंटरनल कैपिटल का आ जाता है कि मैनेजमेंट बोल रहा है भाई जेपी मॉर्गन के पोर्टफोलियो में इंटरनल कोरिलेशन से 20% है, बट हमारे मॉर्गन स्टैनली बोल रहे हैं हमारे वाले पोर्टफोलियो में इंटरनल कोरिलेशन 17% है, तो हमारा 17% के हिसाब से सिनेरियोस बना, ओके 20% हमारे लिए ज्यादा कंजर्वेटिव हो जाएगा, राइट। तो वी कांट गो इन द सेम बोट। यहाँ पे जो हम लोग प्राइमरली क्रेडिटर्स देख रहे हैं, दिस इज ओनली फॉर द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बिजनेस वेयर द ट्रेड्स आर हैपनिंग, नॉट द रिटेल साइड, क्योंकि बैंक्स के रिटेल साइड भी होते हैं ना, आम होते हैं, वो अलग टीम देख रही होगी। रिटेल बिजनेस बहुत अलग वर्क करता है, रिटेल बिजनेस में आपका लोन लॉस रेट, रिटेल बिजनेस इज मोर लाइक लोन्स, तो वो बैंकिंग बुक का पोर्शन हो जाता है कि आप किसी को लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहे हो, आपने किसी को लोन दे रखा है, तो उसमें आपका लोन लॉस रेट, डिफॉल्ट रेट, तो उसमें प्रोजेक्शंस होते हैं, वो ज्यादातर आपका रेगुलेटरी कैपिटल, एक्सपेक्टेड लॉस और अनएक्सपेक्टेड लॉस का सिचुएशन हो जाता है कि वहां पे आप एक तरह से एक्सपेक्टेड लॉस सिनेरियोस जनरेट कर रहे हैं। इधर ट्रेडिंग बुक में हम आप हमेशा एक्सपेक्टेड लॉस पे उतना ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, बिकॉज ट्रेडिंग बुक बहुत वॉलेटाइल होता है। बैंकिंग बुक तो मुझे पता है मैंने 100 मिलियन का लोन दिया, राइट, पर इसमें ट्रेडिंग बुक में आपका कोलैटरल की भी मैनेजमेंट की एक टीम होती है क्रेडिट रिस्क के अंदर ही। करेक्ट, कोलैटरल मैनेजमेंट, उसका अग्रीमेंट सेटअप, इस्डा अग्रीमेंट्स बनाना, उसको नेगोशिएट करना, नेगोशिएशंस के लिए अलग एक टीम होती है जो बैठ करके इस्डा नेगोशिएशंस करती है, कोलैटरल कॉल्स के लिए अलग टीम होती है, वो एलोकेट करती हैं। तो एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो सिर्फ एक लाइन ऑफ बिजनेस नहीं करता है, बिकॉज जब आप जाओगे तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हो जाती है कि आपका लाइन ऑफ बिजनेसेस चेंज हो जाते हैं बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स। अगर आप डेरिवेटिव्स में डील कर रहे हो तो डेरिवेटिव्स के अंदर में आप एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स कर रहे हो या फिर ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स कर रहे हो बायलैटरल, तो एक्सचेंज ट्रेडेड एक अलग लाइन ऑफ सिस्टम होगा, इसके लिए अलग टीम बैठ जाएगी, कि ओवर द काउंटर के लिए अलग टीम सिमिलरली आप सिक्योरिटाइज फाइनेंसिंग कर रहे हो तो उसके लिए एक अलग टीम, रेपोज कर रहे हो उसके लिए एक अलग हो जाएगा, अलग टीम। तो वो हर एक टीम सेपरेटली मैनेज करती है और फिर ये सारा कुछ क्लब हो करके ओवरऑल टोटल हमारा ट्रेडिंग बुक बनता है। ओके, सो आर्यन, अगर किसी को क्रेडिट रिस्क के अंदर जाना है तो क्या प्राइमरी स्किल सेट उनको आना चाहिए आपके हिसाब से? सो क्रेडिट में अगर मैं किसी इंसान का इनिशियल लेवल पे इंटरव्यूज ले रहा हूँ तो मेरे लिए कंसिडर, तो फर्स्ट थिंग दैट आई लुक इनटू इज उसका प्रोडक्ट नॉलेज कैसा है, बराबर, राइट, ओके, उसको डेरिवेटिव्स कैसा आता है, उसके डेरिवेटिव्स में इफ ही हैज एन अंडरस्टैंडिंग कि व्हेन टू राइट अ कॉल एंड व्हेन टू बाय अ पुट, ओके, राइट, समझा। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट अंडरस्टैंडिंग, सबको लगता है सेम है, और सबको लगता है कि यार कॉल क्यों सेल करना है पुट, बिकॉज क्या है कि यू आर लुकिंग इनटू अ ब्रॉडर पोर्टफोलियो। आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन ट्रेडिंग बुक फॉर नाउ, बिकॉज लोन्स वाला पोर्टफोलियो बहुत अलग तरीके से डील होता है, तो लेट्स जस्ट स्टिक टू मार्केट्स साइड पोर्टफोलियो। तो ट्रेडिंग बुक वाला पोर्टफोलियो में दैट देयर आर थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन द पोर्टफोलियो ऑन अ डे टू डे बेसिस, राइट, किसी ट्रेडर ने उस पोर्टफोलियो में कॉल सेल कर दिया है, किसी ट्रेडर ने प्रोटेक्टेड पुट बाय करके रखा है, तो यू नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि ये जो हुआ है उससे मेरे पोर्टफोलियो पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है, राइट। अगर मुझे समझ में आता है कि हाँ ठीक है इसने कॉल सेल किया है तो मेरा पोर्टफोलियो का एक्सपोजर मूव नहीं होगा,
और इसने पुट बाय किया है, तो उसका उसका जो जो ऑफसेटिंग है उसके वजह से मेरा पोर्टफोलियो का एक्सपोजर से इंक्रीज करना चाहिए या डिक्रीज करना चाहिए। समझा अब समझा। सुबह को मैं देख रहा हूँ कि ये वैसा नहीं हो रहा, तो फिर मेरे पास वो मुझे अगर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो मैं सामने वाले को सवाल नहीं कर पाऊंगा कि तुमने जो ये किया था उससे जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा। बिकॉज ओके एंड ऑफ द डे हमारा जो भी काम किस क्रेडिट में बेसिकली क्रेडिट में जो भी काम होता है ना, इज मोर अराउंड रेजिंग क्वेश्चंस। बिकॉज ओके। क्रेडिट में जब आप काम कर रहे हो तो आप एक बैंक का पूरा पोर्टफोलियो उठा रहे हैं, और उससे अगर आपके लॉसेस आप अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाते हो तो आपका बैंक को लॉस हो सकता है। ओके। लाइक आरके गॉस केस, पूरी क्रेडिट स्विस डूब हाँ गई। हाँ हाँ। राइट राइट एक छोटा सा केस जिसमें एक पूरे बैंक को डुबा दिया। राइट। तो द होल पॉइंट ऑफ क्रेडिट टीम इज टू रेज क्वेश्चंस। ओके। और सीवीए की भी अलग से डेस्क होती है हाँ, क्रेडिट में। करेक्ट। तो सीवीए मोर अराउंड मार्केट साइड हो जाता है, क्योंकि वो वैल्यूएशंस में इम्पैक्ट करता है। राइट। तो सीवीए डेस्क ज्यादातर एक्सवीए डेस्क पूरा का पूरा जो है वो हाँ। मार्केट साइड बैठता है, क्रेडिट साइड कम बैठता है। ऑल्दो वो होता ओके। है, बोलते क्रेडिट क्रेडिट वैल्यूएशन, वैल्यू हाँ मतलब एक्सवीए में एक वन कंपोनेंट इज क्रेडिट वाला पार्ट, क्रेडिट राइट? वाला, यू हैव कैपिटल आल्सो, फंडिंग, बहुत कुछ है इसमें। बहुत हाँ सारा। ओके। नाउ आपने एफआरएम किया, सीएफए किया हम्म, और सीक्यूएफ किया। हम्म। तो पहले तो एफआरएम सीएफए आपने साथ में किया था, तो हम्म। क्या थॉट प्रोसेस था वो करने के पहले? अब मुझे ऑनेस्टली फाइनेंस में इंटरेस्ट आ गया था, टू बी ऑनेस्ट। ओके। मैंने पहले सीएफए लेवल 1 दिया था, मैं एमबीए के लिए जा रहा था, और इट वाज मोर ऑफ अ थॉट ऑफ डिसीजन बिकॉज आई कम अ वेरी डाइवर्स बैकग्राउंड। सो आई डिड माय +2 in science, I did my bachelor's in literature, then I ओके। then I moved to MBA in finance. So when I was, because technically it's India, लिटरेचर ग्रेजुएट को नौकरी नहीं मिलने वाली है, और अगर आपके पास नौकरी नहीं है देन यू आर नो वन, सो यू नीड टू थिंक अबाउट द जॉब्स एस्पेक्ट एज वेल। बट जब when I was going into the MBA part, I was giving a thought that which field of MBA should I pick, जो स्पेशलाइजेशन भी करना था। स्पेशलाइजेशन मुझे क्या करना है। तो आई रियलाइज्ड आई केम फ्रॉम अ वेरी मच ऑफ मार्केटिंग सेंटर्ड बैकग्राउंड। My father was in marketing side, my whole family was around marketing thing, so I had those marketing concepts going around my veins. ओके। तो आई थॉट कि इसमें ज्यादा वैल्यू ऐड किताबों से तो नहीं, मैंने रोज प्रैक्टिकल देखा है। मे बी आई वॉज रॉन्ग, बट दैट वॉज द वे आई थॉट अबाउट इट। देन आई थॉट दैट what to do to get into something and also keep adding value across my career. ओके। So even before I started my MBA, I got to know about CFA. That was how I discovered that CFA is a course where they teach finance. And once I started studying for CFA, I realized कि this is interesting. तो मजा आ रहा है, जैसे कि ये तो मैं रोज देखता हूँ, बट मैंने इसको कभी इस तरीके से नहीं देखा था। समझा। कि बैंक का इंटरेस्ट रेट हमें किस तरह से इम्पैक्ट करता है। बराबर। अब बैंक के इंटरेस्ट रेट में, मैंने एक बैंक में एफडी खोला है, बट देयर आर ऑल्सो बॉन्ड्स जहाँ पे मैं आ सकता हूँ, उसमें मुझे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, मुझे ज्यादा रिस्क आएगा। पोर्टफोलियो कैसे मैनेज होता है, स्टॉक्स कैसे, से सीएनबीसी पर आकर के ये लोग बोलते हैं ना कि इसका टारगेट इतना है, मतलब टाटा मोटर्स है 20% अपसाइड पोटेंशियल, वो क्यों है? तो इट गेव मी एन अंडरस्टैंडिंग एंड आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट. So that brought me to finance in MBA. So after doing my CFA level, completing it, clearing it, first attempt में ही हो गया था. Then I moved. FRM भी दे देते, FRM भी दे देते, but COVID happened and it kept on delaying and getting postponed, and eventually I had a year lag. But the whole thought process was to upgrade on the go. So I ensured कि even while I was doing my MBA, I sat for an exam every 6 months, क्योंकि वो feasible है, हर एग्जाम 6 महीने में होता है, और एक लेवल के लिए आप अगर अच्छे से पढ़ते हो तो 6 महीने इज द एम्पल टाइम। आपको 6 महीने से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, बिकॉज वो, क्योंकि वंस यू स्टार्ट दोज कोर्सेज यू विल अंडरस्टैंड कि फिक्स्ड इनकम और डेरिवेटिव्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। आपका फंडा कनेक्ट करने आ गया तो आप इक्विटीज में भी आप डिस्काउंट कर रहे हो, फिक्स्ड इनकम में भी आप डिस्काउंट कर रहे हो, डेरिवेटिव्स में भी आप डिस्काउंट कर रहे हो। आप एक सबसे बड़ा फैक्टर इज इंटरेस्ट रेट। आपने उस इंटरेस्ट रेट पर कमांड कर लिया तो आपको पता होना चाहिए आप हर चीज को डिस्काउंट ही करने वाले हो। अब ये है कि आप किस पॉइंट पे ले जाकर डिस्काउंट कर रहे हो,
किस तरीके से डिस्काउंट कर रहे हो, किस किस पॉइंट पे डिस्काउंट कर रहे हो, Right. because it's all about discounting those things to your current state, present Right. value. Right. Everything is present value. That's the base how you Exactly. calculate the value in finance. Exactly. Right. So But आपने फिर जैसे अभी आपने FRM CFA दोनों कंप्लीट किया, फिर CQF क्यों किया? What was the thought process? So my manager asked me the same question actually. So that was my answer to him was that CFA gives you an overview of finance. बराबर सब जगह कवर करवाता है. Exactly. FRM gives you the mathematics of finance. A lot of the mathematics is FRM on the is mathematics in FRM is basically on the heavier side, and CQF is implementing both of these things into a particular structure which is applicable in finance. Right. Okay. So it's like कि आप सब्जी बनाने जा रहे हो, आपने कांदा मंगवा लिया, फिर अब उसको काट लिया, अब सब्जी तो बनानी है ना. Okay. तो बनाने वाला काम CQF का है to Okay. actually join it, but it's more of an area of interest that I had. I would not recommend. It's a very expensive course, and unless you are very keen on going into that modeling side, तभी आपको करना चाहिए. तभी करना चाहिए, वरना फिर उसका वैल्यू एडिशन ज्यादा कुछ है नहीं. करेक्ट करेक्ट. नाउ ओवरऑल जब आप जर्नी देखते हो इन फाइनेंस, तो अगर आप सपोज स्टार्ट करते हैं अभी आफ्टर योर एमबीए और आपको क्रेडिट रिस्क साइड में मूव करना है, तो कैसे करते हैं अगर आज आप स्टार्ट करते तो? बट इफ समवन हैज टू स्टार्ट इन इट, आई बिलीव ही शुड स्टार्ट with the credit review part, credit research. Once you start with credit research, you stay connected to the other side, accounting side of finance. कैसे करेंगे क्रेडिट रिसर्च? क्रेडिट रिसर्च, बैलेंस शीट आपका, आप किसी कंपनी का एनालिसिस कर रहे हो और इन टर्म्स ऑफ उनकी क्रेडिट क्वालिटी क्या है, उसके बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है या नहीं है. तो इट्स मोर लाइक इक्विटी रिसर्च बट फ्रॉम अ क्रेडिट पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे एक रेटिंग एजेंसी सोचती हो. करेक्ट, रेटिंग एजेंसी. तो दैट गिव्स यू एन अटैचमेंट टुवर्ड्स द इन्वेस्टमेंट साइड एज वेल, द फाइनेंस साइड, द अकाउंटिंग साइड. देन यू मूव इनटू द रिस्क मैनेजमेंट साइड. तो जैसे आपने बताया ना कि रेटिंग एजेंसी, तो हम लोग रेटिंग एजेंसी के जो रिपोर्ट्स आते होंगे फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी, वो पढ़ के भी आप एक बेसिक फ्लेवर ले सकते हो इसका. हाँ, फ्लेवर ले सकते हो, बट वही है कि आई फील कि लर्निंग ऑन द गो गिव्स यू द बेस्ट level of understanding and enhances your gray cells in a way that you can't really do from hearsay. अब किसी ने रिसर्च कर रखा है, उसने बोल दिया बैंक की लिक्विडिटी पोजीशन कहाँ कैसी है, और आपने उसको कैलकुलेट ही नहीं किया. समझे? यू हैव टू गो बैक एंड कनेक्ट. You have to go back. You have to look at those liquidity profiles. You have to see कि उस बैंक की लिक्विडिटी पोजीशंस कैसी है, उसके कैश फ्लोज कैसे हैं. करेक्ट है. तो तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ठीक है, ये जो लिखा है इसने, इट्स मेकिंग सेंस. बिकॉज एक बैंक में, इफ यू आर जस्ट अ बैंकिंग बिजनेस, so there are majorly two roles. One is finance, which is the business side, and one is risk. Right. So if you sit in the credit research part, you are basically a little bit of both sides. So that gives you a flavor to actually judge which path you want to take. Okay. Now, if you choose to go to the credit side, then you go, so from here you can leverage into the sanctioning side, where you can sanction. वो रिस्क मैनेजमेंट पार्ट हो गया. रिस्क मैनेजमेंट है कि आप लिमिट सेट करना, कितना सैंक्शन करना है, ये पर्टिकुलर फंड को कितना मतलब लिमिट दे सकते हैं, कितना एक्सपोजर इसके साथ रख सकते हैं. राइट. उसमें आपका ये पीएफई वार ये सारा कुछ इंक्लूड हो जाएगा, बिकॉज आप डे टू डे उस लिमिट को मॉनिटर भी कर रहे होगे, और दूसरा आप उस पर्टिकुलर क्लाइंट के प्रोफाइल को भी एनालाइज कर रहे होगे. So that gives you a flavor. Still you are connected with, you are in risk, you are a little bit connected with the business side, and you keep yourself open for future opportunities. I can switch on the right and on the left. Okay. So that keeps you dynamic, that keeps you updated, and that keeps you also in demand in the market. Okay. इसको ये भी आता है. Okay. तो देर उसके बाद फिर अगर आपको लगता है कि हाँ अभी भी मुझे रिस्क में ही रहना, राइट, तो फिर यू नीड टू डिसाइड हाउ क्वांटिटेटिव यू वांट टू गो. Okay. Right. Like I chose the quantitative part, the extreme. तभी FRM आया, CQF CQF आया. हाँ,
आई चोज द क्वांटिटेटिव है कि भाई यहाँ से अब मुझे और क्वांटिटेटिव जाना है, तो मैं मॉडल्स में घुसा। मैं क्वांट्स के साथ बैठ करके डिस्कशन कर रहा हूँ, एंड देन माय डिस्कशन रिवॉल्व्स around these formulas, complex formulas, reading reports that someone has published around certain formulas that needs to be developed, and then applying those into the system so that you can create something. Right. So from saving the bank, my intention was to move towards creating something which can add value. Right. So more of a progressive side of things. So that was the path that I chose. But if I have to recommend myself, I would say keep those paths open, so that from here on as well, if you want to go anywhere else, you should not close your doors once you cross them. Okay. इंटरेस्टिंग. नाउ फाइनल क्वेश्चन, अगर आप किसी ऑडियंस को कुछ एडवाइस देना चाहोगे अपने एक्सपीरियंस में, हाउ टू मेक अ करियर इन फाइनेंस? So in India's infrastructure, if you are a bachelor and if you're not an engineer, you don't really get an opportunity. Being very practical, you don't get an opportunity anywhere. Well, engineers do get something here and there. Most of the banks out here hire an MBA. राइट. बहुत जगह पे स्केल बन चुका है कि MBA तो चाहिए. Exactly. So even if not an MBA, a master's is mandatory unless बहुत जगह पे है. exactly. Most of these roles come in as high end. And you need to have at least a master's degree. Like most of the firms go to Delhi School of Economics, hire those master's graduates into their quants team. Our quants team hire a lot of people from DSE. लेकिन अगर हम एंट्री लेवल रोल्स की बात करें, बेसिक भी एटलीस्ट इनटू द रिस्क साइड, बीट मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, तो एक बैचलर प्लस CFA या FRM can at least get them into the role? Yes, they can, but it is difficult. Being very practical, it is difficult. Okay. Banks don't really go after those people, even if you are a bachelor. So I don't really, because why these professional courses are created is not for someone sitting at home to do just the course. हाँ, ये बात को तो मैं भी एग्री करता हूँ. Yes. These जॉब छोड़ के आप सिर्फ कर रहे हो तो प्रैक्टिकली आपको पता होना चाहिए. Exactly. So these courses are when you keep on applying them. I agree, ये बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करता है, आपका नॉलेज ग्रो करता है, बट इवेंचुअली बैचलर्स डिग्री पे कंपनीज हायर कम करती हैं, इवन एट द लोएस्ट लेवल कम करती हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत MBAs ऑलरेडी है. एग्जैक्टली. मार्केट में आपसे बेहतर MBA का क्रॉप इवन फ्रॉम अ वेरी मीडियोकर इंस्टीट्यूट अवेलेबल है, तो कंपनीज उसके पास जाती हैं, क्योंकि वो कैंपस है, उनके पास एक लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड है कि एक बंदा 12 साल एजुकेशन फिर. इसमें मेरा एक पॉइंट है, जैसे क्या होता है ना कि अगर हम प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स को हटा दें MBA के, जो टियर 2 टियर 3 इंस्टीट्यूट्स है, अगर आप एक बैचलर हो हु इज स्मार्ट, आपका कम्युनिकेशन बहुत तगड़ा है, और आपने सपोज ये कोई सर्टिफिकेशन किया, तो आप उन सबको बीट करके निकल सकते हो. करेक्ट. क्योंकि मेजॉरिटी जो बैचलर्स आते हैं वो पॉलिश्ड ही नहीं है. करेक्ट. उनको ये नहीं पता है कि हाउ टू टॉक टू अ मैनेजर, हाउ टू बिहेव इन अ टीम. मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंग्लिश जिस तरीके से बोलनी चाहिए. जो ग्लोबल बैंक बॉम्बे में बैठा है, वो हायर करते वक्त जो एक्सपेक्टेशन ले रहा है वो नहीं है. तो आई थिंक सो वो अगर थोड़ा सॉर्ट आउट हो जाता है तो एटलीस्ट दे विल बी एबल टू कम्पीट. तो वो प्रेजेंटेशन MBA क्या सिखाता है? अल्टीमेटली यस, प्रेजेंटेशन. यस. आपको बस MBA gives you two things. One, the art to sell, and two, a network. I mean, so I think so ये लास्ट कॉन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होगा ऑडियंस के लिए. और अगेन थैंक यू आर्यन फॉर टेकिंग आउट टाइम, बिकॉज ये जो कॉन्वर्सेशंस हैं जो हम आज के डेट में, जो मुझे लगता है कि ना, जो कॉलेज से बच्चे आ रहे हैं, न्यू पब्लिक है जो शायद फाइनेंस के ऑपरेशन साइड में बैठी है और उनको अंदर आना है, बहुत सारे बैंकर्स हैं उनको अंदर आने टू कोर रोल्स, उनके पास कोई गाइडिंग फिगर ही नहीं है. उनको पता ही नहीं क्या करना. और बहुत लोग बॉम्बे के बाहर बैठे जिनको इसको, अगर आप बॉम्बे में एटलीस्ट तो आपको पता है कि ये बैंक में कोई फ्रेंड का फ्रेंड तो होगा ही, तो बात कर सकते हो. लेकिन जो बाहर बैठा उसको तो कुछ है ही नहीं. तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू विद दीस पॉडकास्ट, कि एटलीस्ट उनको एक आइडिया लगे, किसी से कनेक्ट कर पाए या डिस्कशन तो सुन पाए. तो ये आई थिंक सो दैट प्रॉब्लम विल बी सॉर्टेड. सो अगेन आर्यन, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर. बहुत अच्छा कन्वर्सेशन था, बहुत मजा आया. थैंक यू.